Today I'm going to start our third unit, that is a gymnosperm. So what is the meaning of gymnosperm? Gymnosperm means naked and sperm means seeds. Gymnosperm, what is the literal meaning of gymnosperm? The literal meaning of the gymnosperm is the naked seed, means seeds are not covered. So have you ever seen that seeds are naked? आप कभी भी इस तरीके के जो एंजियोस्पर्मिक फ्रूट्स को नॉर्मली हम जो देखते हैं, the seeds are found inside the fruit. I mean seeds are covered by fruit, they are never found naked. But in gymnosperm the seeds are naked. तो seeds naked क्यों हैं? Because there do not occur formation of the fruit. That's why the seed is naked. And seed का formation किससे होता है? You must be knowing that seed develops from the ovule. And seed का development किससे होता है? Ovule से होता है. And fruit का development किससे होता है? Ovary से होता है. The ovule is formed inside the ovary. And after fertilization, the ovule is converted into the seed and ovary into the fruit. Okay. And this word gymnosperm was first used by the Theophrastus, and Theophrastus was the student of Aristotle, and he has given this word in the book Inquiry into Plants. Okay. So on the basis of presence of seed, whether it is covered or not covered, he divided the plants into two categories, angiosperm and gymnosperm. Angiosperm means जिसके sperms covered है ना. Angion means vessels होता है. देखो अभी आप इसके बाद angiosperm, जब gymnosperm खत्म हो जाएगा तो आप fossil पढ़ोगे, fossil plants के बारे में. After that you will study about the angiosperm. So what is the quality of angiosperms? In the angiosperms the seeds are covered by the fruit, and they have covered seed, and moreover they possess angion vessels. They possess vessels, and in gymnosperm the seeds are naked. Okay. And so it was about gymnosperm. So let me tell you about different general characteristic features of the gymnosperm. तो gymnosperm के क्या characteristic होते हैं? Normally जो gymnosperms होते हैं, they are mostly trees and shrubs, है ना. They are वो ज्यादातर कैसे होते हैं? Shrubs या trees होते हैं. They are not herbs and climbers, and they are very slow growing. अभी आप अगर हमारे बॉटनिकल गार्डन में आके देखेंगे तो वहां पे 2 जिम्नोस्पर्म ऑलरेडी है, 3 जिम्नोस्पर्म के there are 4 gymnosperm species in our botanical garden. One is a cycas, another one is a pinus, and araucaria and thuja. All these are the gymnosperm species. So gymnosperm species की basically क्या qualities होती हैं? They are slow growing. वो slow growing करते हैं और उनमें vegetative method नहीं होता है reproduction का. वेजिटेटिव मेथड मींस कि सेम प्लांट के किसी पार्ट से और दूसरा ग्रो करे. केवल साइकस के केस में बुलबिल से होता है. एंड दे डू नॉट ग्रो इन ऑर्डिनरी हैबिटेट. की मतलब किसी हैबिटेट में देखो ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म के स्पीसीज हैं वो आपको थोड़े से जो हिली रीजन है वहां पे देखने को मिलेंगे. I mean they require certain optimum environment condition. उनका कुछ अपना स्पेसिफिक कंडीशंस होता है. समटाइम्स दे प्रेफर कोल्ड रीजन, एंड ज्यादातर वो जीरोफिटिक भी होते हैं. तो मोस्टली वो ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. हर जगह वो सरवाइव नहीं करते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो जिम्नोस्पर्म. एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म आर टेरेस्ट्रियल. वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, पानी में नहीं पाए जाते हैं. 1-2 एक्सेप्शन है केवल एक्वेटिक हैबिटेट का. एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दे लैक वेसल्स इन द जाइलम. हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ रहे थे ना, जैसे हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा, वहां पे जो वेसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो जाइलम होती थी उसमें वेसल्स भी नहीं पाए जाते एंड जाइलम फाइबर भी नहीं पाए जाते. बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म इसमें बाकी चीजें पाई जाती हैं, केवल वेसल्स नहीं पाई जाती हैं.
अब ये वेसल्स का डेवलपमेंट कहाँ होगा? सबसे पहले एंजियोस्पर्म में होगा. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म? दे लैक वेसल्स इन द जाइलम एंड कैम्पेनियन सेल्स इन द फ्लोएम. ये याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. दे लैक वेसल्स इन द जाइलम एंड कैम्पेनियन सेल्स इन द फ्लोएम. मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर यूनिसेक्सुअल. क्या होते हैं वो? यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स दे हैव आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दे हैव आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देयरफॉर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. तब ऑब्वियस है कि जब सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है तो दे हैव चांसेस ऑफ डूइंग क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसका मतलब है उसमें बहुत ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है. एंड विंड इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन. इसमें सबसे जो मेन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज विंड. जैसे इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा से उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पे. व्हाट इज द पॉलिनेशन? द पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज द पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज द पॉलिनेशन. तो इनका जो पॉलिनेशन है वो ज्यादातर हवा से होता है. हवा से उड़ के इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक मेल से फीमेल प्लांट पे जाके गिरते हैं. सो इट अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म. एंड व्हाट अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी? ये प्लांट ज्यादातर मैंने आपको बताया कि दे आर बेसिकली ट्रीज और श्रब्स. ये बहुत रेयरली ही हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं. एंड केवल साइकस में बुलबुल से प्रोपगेशन है. ज्यादातर इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता. और इनमें जो रूट होता है दैट इज अ टैप रूट. तो व्हाट इज टैप रूट? द रूट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, है ना. फर्स्ट फॉर्म रूट इज अ टैप रूट. लेकिन जो पाइनस होता है उसमें माइक्रोइजल रूट्स पाए जाते हैं और साइकस में कोरेलॉइड्स है. तो अभी हमारे बॉटनिकल गार्डन में ये दोनों ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं. तो माइट बी वी कैन सी दिस थिंग्स कि साइकस का कोरेलॉइड रूट्स कैसे होता है एंड और पाइनस का माइकोराइजल रूट. माइकोराइजल रूट क्या होता है? द माइकोराइजल रूट में what is mycorrhiza? Mycorrhiza is the association of the pinus or other higher plant with the fungus. mycorrhiza में किसका एसोसिएशन होता है? सिम्बियोटिक. जो रूट ऑफ प्लांट विद द फंगस. एंड कोरेलाइड रूट्स किसमें पाया जाता है? कोरेलाइड रूट्स पाया जाता है साइकस में. तो इसका स्टेम कैसा होता है? इसमें दो तरीके के स्टेम होते हैं. या तो इसके स्टेम एरियल इरेक्ट अनब्रांच होते हैं और दे आर स्टेम इज अ ब्रांच. एंड इन जिम्नोस्पर्म पाइनस में दो तरीके की ब्रांचिंग होती है. दो तरीके के शूट्स पाए जाते हैं. लॉन्ग शूट एंड डॉर्फ शूट. मतलब लंबा और बौना. बौना जो शूट होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? उसके एपिक्स पे स्पर पाए जाते हैं. स्पर्स व्हाट आर दैट? दीज आर द बेसिकली जो इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है कौन होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्स. ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म में पत्तियां कैसी होती हैं? माइक्रोफिलस भी होती है, मेगाफिलस. माइक्रो मीन्स छोटी छोटी माइन्यूट पत्तियां भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं. ठीक है. एंड उसमें डिफरेंट तरीके के वेनेशन पाए जाते हैं. पैरेलल वेनेशन भी होते हैं एंड रेटिकुलेट भी होता है और डाइकोटोमस भी होता है. वेनेशन जानते हो पत्तियों में? किसी पत्ती को देखा है? किसी में जो वेन्स होती हैं आप देखोगे बिल्कुल पैरेलली रन करती हैं. दैट इज कॉल्ड पैरेलल. एंड रेटिकुलेट मींस नेट लाइक. जैसे आप किसी घास को उठा के देखना, उसकी पत्ती को, बांस की पत्ती को देखना, गेहूं की पत्ती को देखना, धान की पत्ती को देखना और किसी और दूसरे प्लांट, आम, अमरूद, इन सब की पत्ती को देखना. तो आम अमरूद की पत्ती में यू विल सी रेटिकुलेट नेट लाइक उनका जो पैटर्न है. और जिसमें बिल्कुल सीधा सीधा होता है दैट इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन. तो लीफ का अरेंजमेंट क्या है? इसमें लीफ का अरेंजमेंट, लीफ में भी वर्ल्ड, लीफ में भी अपोजिट और डिकसेट या अपोजिट अरेंज होगा, स्पाइरली अरेंज होगा, है ना. एंड बहुत तरीके के अरेंजमेंट होता है. या दे में बी वर्ल्ड. एंड कॉनिफर्स यूजुअली हैव संकेन स्टोमेटा. क्या होते हैं कॉनिफर्स? जैसे अभी मैं आपका इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बताऊंगी तो मैं बताऊंगी इसमें कॉनिफर्स कौन से होते हैं. कॉनिफर्स जो होते हैं मेनली उनमें कोन का फॉर्मेशन होता है. कोन शेप प्लांट वो ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ कॉनिफर्स. उसमें जो स्टोमेटा होता है दैट इज सनकेन. सनकेन मींस हिडन स्टोमेटा. तो हिडन स्टोमेटा क्यों होता है? देखो मोस्टली दे आर ऑफ जीरोफिटिक नेचर. कॉनिफर्स क्या होते हैं?
वो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, दे ग्रो इन अ ड्राई हैबिटेट। तो अब जो ड्राई हैबिटेट में ग्रो कर रहे हैं, जीरोफिटिक हैं, तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स का एडेप्टेशन होता है कि वो वाटर के लॉस को बचाने के लिए वो अपनी स्टोमेटा को नॉर्मली हिडन रखते हैं, और उनकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत ही माइन्यूट होती हैं, स्केली होती हैं, बहुत ही माइन्यूट निडल शेप्ड लीव्स होती हैं। तो जो आप जितनी भी कॉनिफर्स देखोगे, उस कॉनिफर्स में पत्तियां बिल्कुल माइन्यूट होती हैं। गार्डन में विजिट करना, आई विल शो यू द लीफ ऑफ पाइनस। उसे पाइनस की पत्ती को पाइनस निडल बोलते हैं, बिकॉज उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल निडल जैसी होती हैं। तो ये निडल जैसी क्यों होती हैं? जस्ट टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर। एंड जो उसका स्टोमेटा होता है, दैट इज ऑल्सो सनकिन काइंड। Okay, the shape of the leaf may also be triangular, triangular भी होता है, बाइफिड और सर्कुलर, मतलब अलग अलग प्लांट में अलग तरीके के होते हैं। बाइफेशियल लीफलेट ऑफ साइकस जैमिया एंड निटल लीफ। बाइफेशियल का मतलब लेफ्ट और राइट में उसकी जो लीफलेट्स हैं वो डिवाइडेड है। तो once you will visit in a garden, I'll show you the different kind of a leaf. And now ये देखो डिफरेंट तरीके के लीफ, जो मैं देखो रेटिकुलेट वेनेशन बता रही थी, जिसपे मैं ये एरो दिखा रही हूँ, निटम लिखा हुआ है, दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। और ये देखो ये प्लांट है, ये दिस इज द पैरेलल वेनेशन, है ना। तो डिफरेंट तरीके की पत्तियां होती है। ये जिंगो बायलोबा की पत्ती है, दिस इज बायलोब की पत्ती। डाइकोटोमस की ब्रांचेस में दो लोब है, तो दिस इज अ डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो ये डिफरेंट पत्तियां हो गई, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो अभी आप जैसे एंजियोस, अभी तक आप जितने प्लांट पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आपने कहीं पे सेकेंडरी ग्रोथ का नाम नहीं सुना। सो व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रोथ? देखो, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है जब पौधा, जब कोई भी हम प्लांट को ग्रो करते हैं, तो जब पहले पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे, अगर ट्रीज के केस में देखोगे तो बहुत चौड़ा होगा और लंबा होगा, चौड़ा होगा। तो there are two kind of growth, one is a primary growth, one is secondary growth. Primary growth में just पौधा ग्रो कर रहा होता है, प्लांटलेट से एक कंप्लीट प्लांट बनता है। लेकिन what is secondary growth? In the secondary growth, the प्लांट इंक्रीजेज इट्स गर्थ, वो अपनी चौड़ाई को, अपनी विड्थ को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है और चौड़ाई को बढ़ाता है। इन रेशियो ऑफ द हाइट इट इंक्रीजेज इट्स विड्थ, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये अभी तक आपने कहीं पे भी सेकेंडरी ग्रोथ, मैंने जब भी पढ़ाया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, कहीं पे भी मैंने इस वर्ड का, सेकेंडरी ग्रोथ वर्ड का यूज नहीं किया, बिकॉज वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। नॉर्मली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म। और इसमें क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो दो तरीके के वुड बनते हैं, प्राइमरी वुड एंड सेकेंडरी वुड। ठीक है, प्राइमरी वुड मतलब कि जो लकड़ी प्राइमरी ग्रोथ से बनती है, दैट इज अ प्राइमरी, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनती है, दैट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसमें इसके अलावा भी दो तरीके के वुड पाए जाते हैं, मेनोजाइलिक वुड एंड पिक्नो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। तो मेनोजाइलिक वुड में क्या होता है, वुड जो है पोरस होता है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं, सॉफ्ट होता है और पेरेनकाइमेटस होता है। देखो पेरेनकाइमेटस है तो ऑब्वियस है कि वो सॉफ्ट ही होगा, एंड उसमें पोर्स होते हैं। दैट काइंड ऑफ अ वुड इज अ पोरस वुड। ऐसे वुड को क्या बोलते हैं, मेनोजाइलिक वुड कहते हैं। द वुड दैट इज अ पोरस, सॉफ्ट एंड पेरेनकाइमेटस। व्हाइल पिक्नोजाइलिक वुड किस में पाया जाता है, कॉनिफर्स में, जैसे साइकेड्स में, साइकस में, या और स्पीसीज हैं साइकेड्स की, जिसमें वुड क्या होता है, पोरस होता है, सॉफ्ट होता है एंड पेरेनकाइमेटस होता है। बट इन ए कॉनिफर्स द वुड इज कॉम्पैक्ट एंड नैरो मेड्यूलरी रेज। वुड कैसा होता है, कॉम्पैक्ट मतलब ठोस होता है, और उसमें नैरो मेड्यूलरी रेज पाई जाती हैं। एंड आपको तो इसमें पता ही है कि इसके जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। केवल दो ऐसे प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म के जो एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, इससे 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपको मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड में डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरे आपको ये पूछेंगे कि कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल पाए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है एफेड्रा एंड निटम।
What is the example? Ephedra and Nitum. Can you all hear me? Yes, ma'am. ओके सो किसी भी जिम्नोस्पर्म के वुड में वेसल्स नहीं पाए जाते एक्सेप्ट एफेड्रा एंड निटम। और इसका जाइलम क्या होता है? जाइलम इज यूजुअली एंडार्च। एंडार्च का मतलब क्या होता है? व्हेन प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड इनसाइड, मतलब प्रोटोजाइलम मींस फर्स्ट फॉर्म जाइलम। जाइलम का ग्रोथ अगर अंदर की ओर होता है देन दैट इज नोन एज ए एंडार्च कंडीशन, है ना। एंड वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च एंड ओपन। इसका क्या मतलब होता है? वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वेस्कुलर बंडल में कंजॉइंट है, कंजॉइंट मींस जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जॉइंट है। कोलेटरल है मींस एक तरफ आउटर साइड में फ्लोएम है, इन साइड में जाइलम है। इंडार्च का मतलब मैंने बता दिया, व्हेन जाइलम ग्रोज इनवर्ड्स, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो और मेटाजाइलम बाहर। एंड ओपन का मतलब क्या होता है? when cambium is found between xylem and phloem, then that kind of vascular bundle is known as a open. कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम इज अ काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? The meristematic tissue is the kind of tissue that has unlimited power of division and differentiation. तो जो कैम्बियम होता है that is found between the xylem and phloem. इज दैट क्लियर? तो कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। जो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है दैट अकर्स ड्यू टू दैट कैम्बियम, क्योंकि वो कैम्बियम डिवाइड करता है और बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम बढ़ाता है। और वो फ्लोएम जाइलम बनने के कारण ही पौधे की चौड़ाई, उसका गर्थ, उसका लेटरल ग्रोथ होता है। So that secondary growth is due to the formation of vascular cambium. Vascular cambium is the kind of a meristematic tissue. Is that clear? Can you all hear me? Is that clear? Yes, ma'am. ओके नाउ इट्स अ क्लासिफिकेशन। देखो जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। तो जो एक स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन कोल्टर एंड चैम्बरलेन ने 1917 में दिया, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को 7 ऑर्डर में डिवाइड किया। देखो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पौधे का, प्लांट का क्लास है बेटा जिसमें लिविंग मेंबर भी पाए जाते हैं एंड फॉसिल मेंबर भी पाए जाते हैं। फॉसिल मींस these plants that are not available now, means they are no more but only preserved remains of that plant is available. अगर उसका केवल preserved remain present है then that is known as a fossil, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर फॉसिल और मेंबर्स हैं और लिविंग मेंबर हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा लिविंग मेंबर नहीं है, दोनों मिक्स टाइप के हैं, ठीक है। तो इसको 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। साइकेडोफिलिकल्स, बेनिटाइटल्स, साइकेडेल्स, कॉर्डेटल्स, जिंगोयल, कॉनिफरल्स एंड निटिल। देखो साइकेडोफिलिकल्स के सारे मेंबर ही और बेनिटाइटल्स के दोनों फॉसिल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पहले 2 ऑर्डर है साइकेडोफिलिकल्स एंड बेनिटाइटल्स। इन दोनों के मेंबर्स क्या है? फॉसिल है। साइकेडेल्स में लिविंग और फॉसिल दोनों है। कॉर्डेटल्स में भी फॉसिल मेंबर है। जिंगोइल्स में लिविंग और फॉसिल दोनों है। कॉनिफरस में और निटल्स में। इसका मतलब है कि ये जो 3 ऑर्डर है साइकेडोफिलिकल्स, बेनिटाइटल्स एंड कॉर्डेटल्स, इन ये तीनों के मेंबर ओनली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फॉसिल। इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अलग अलग बेसिस पे जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई किया है। तो आपको एग्जाम में देना होगा, आप कोई भी एक जो आपको सही लगे कोई एक क्लासिफिकेशन पिक करके पढ़ लेना, क्योंकि इतने सारे क्लासिफिकेशन है तो आप कोई एक ही तैयार कर पाओगे। तो जो आपको लगे कि यस दिस क्लासिफिकेशन इन इजी, आई कैन इजीली प्रेजेंट, वो दे देना। तो बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है इन्होंने। कुछ लोगों ने वुड के बेसिस पर डिवाइड किया है पौधे को। एंड देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ वुड द जिम्नोस्पर्म वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, मेटाजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक, है ना। ये मेटाजाइलिक तो गड़बड़ है, मेनोजाइलिक इसका नाम होगा, ये इसमें गड़बड़ लिखा है। तो आप लोग बुक से पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो मैंने नोट शेयर किए थे ना, उसमें कहीं कहीं एक टर्मिनोलॉजी गलत टाइप हो गई है, तो आप थोड़ा सा बुक को रेफर करना।
तो मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक मैंने बताया जिसमें वुड कॉम्पैक्ट होता है, और मेनोजाइलिक जिसमें पोरस और सॉफ्ट होता है। तो जो मेनोजाइलिक का एग्जांपल कौन कौन है? साइकेडेल्स, साइकेडियोडेल्स, साइकेडोफिलिकस। एंड पिक्नोजाइलिक का एग्जांपल है कॉर्डेटल्स, जिंगोयल्स, कॉनिफरल्स एंड निटल्स। So this is the example, and you know there are many more classification of the gymnosperm. आपको जो आसान लगे वो आप करना। जैसे अभी सबसे एक जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है उसका वो है क्रिश्चियन हूस का, क्रिश्चियन ह्यूज एटल 2011। इन्होंने क्या किया है, जिम्नोस्पर्म को 4 सब क्लास में डिवाइड किया है, 8 ऑर्डर एंड 12 फैमिली। सब क्लास फर्स्ट इज साइकेडिडी। साइकेडिडी को उन्होंने कौन से ऑर्डर में डिवाइड किया है? साइकेडेल्स में। इसमें कौन सी फैमिली है? साइकेडेसी एंड जेमिएसी। तो साइकस हमने अपने गार्डन में, साइकेडेसी का एग्जांपल है साइकस, हमारे गार्डन में भी है। जेमिएसी का एग्जांपल जेमिया होगा, जेमिया भी मैं अपने गार्डन में ले आऊंगी। एंड सेकेंड वन इज सब क्लास जिंगोइडी। जिंगोइडी में जिंगोइल्स है, तो उसका फैमिली है जिंगो। ये क्लासिफिकेशन भी आप याद कर सकते हो क्योंकि ये रिसेंट है, 2011 का है। तो आप चाहो तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन क्रिश्चियन ह्यूज का याद करना, बिकॉज दिस इज द रिसेंट क्लासिफिकेशन। तो क्रिश्चियन ह्यूज एटल 2011, ये वाला क्लासिफिकेशन आसान भी है। 4 सब क्लास है, साइकेडिडी, जिंगोइडी एंड निटिडी एंड पिनिडी। ठीक है, जिंगोइडी का एग्जांपल जिंगोइल्स, साइकेडिडी का एग्जांपल साइकेडेल्स, एंड निटिडी में कौन सा ऑर्डर है? वेल्वेशियल्स, निटेल्स एंड एफेड्रल्स। निटेल्स में निटम है, एफेड्रल्स का एग्जांपल एफेड्रा है, वेल्वेशिया है इसका। दैट्स अ वेरी इजी, आप इसको पिक कर सकते हो। पिनिडी, पिनिल्स एंड पिनी। एरुकेरियल्स, एरुकेरिया एंड क्यूप्रसल्स, Cupressaceae, Taxaceae. So you can see that classification. And एक जिम्नोस्पर्म में ये आता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है दे उसके, मैंने आपको बताया कि उसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हैं, बट सम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिविंग फॉर्म, सम आर अवेलेबल। एंड तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, दे आर फॉर्म थ्रू आउट द टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड इवन इन आर्कटिक जोन्स। हर रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो जो ट्रॉपिक्स के पास, ओशियंस के पास और सी के एडजॉइनिंग जो एरिया होती है, दैट इज अ ट्रॉपिकल। एंड आर्कटिक रीजन मतलब पोलर रीजन, है ना। टेम्परेट रीजन जो होता है वो हमारा टेम्परेट रीजन है जैसे, ठीक है। और जो ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, दे आर एवरग्रीन जीरोफाइट्स। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? एवरग्रीन और डेसिडुअस पता होता है आप लोगों को? डेसिडुअस वो प्लांट होते हैं जिनमें पतझड़ होता है। एक टाइम पे दे शेड देयर लीव्स एंड आफ्टर ऑन द ऑनस्लॉट ऑफ ये suitable season, on the dawn of suitable season they develop leaves. लेकिन जो एवरग्रीन होते हैं उनमें हमेशा पत्तियां होती हैं, and they are mostly xerophyte. तो इसमें कितने जेनरा हैं? There are about 70 जेनरा and 725 species, और जिसमें से 16 जेनरा and 53 species are reported from the India, जिसमें से 14 जेनरा को माहेश्वरी ने नोट किया है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेट रीजन में जो पाए जाते हैं, जैसे ज्यादातर जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो टेम्परेट रीजन में जो पाए जाते हैं, वो मोस्टली जो हिमालयन रीजन है वो इनको प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये इसको आप पढ़ लेना कि कौन सी स्पीसीज कहाँ है, कौन सी कहाँ पे ज्यादातर पाई जाती है। जैसे कि जिंगो बायलोबा इज अ नेटिव ऑफ चाइना, एंड ये इसको भी लोग गार्डन में लगाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका पार्ट है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास, एंड
इसका रिप्रोडक्शन, तो लेट्स सी इट्स रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल, ये एक इसका लाइफ साइकिल का एग्जांपल है और ये जो पाइनस का प्लांट ही दिखा रहा है। पाइनस, ये इसकी पत्तियां देखो, दीज आर द नीडल शेप्ड लीफ, और इसमें दो तरीके के कोन है, फीमेल कोन एंड मेल कोन, ठीक है। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे मेल कोन बोलते हैं, एंड फीमेल कोन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे फीमेल कोन और स्ट्रोबिलस बोलते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम में, ये मेल कोन का एग्जाम्पल है। एंड पत्ती, जैसे आपको मैंने मेगा स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल बताया था, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे है, लीफ के एक्सिस में स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल, एंड माइक्रोस, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। उसी तरह फीमेल में भी मेगा स्पोरेंजियम बनता है। तो इसमें मेल और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है, एंड इसी यही इसका ओव्यूल है, ये इसके ओव्यूल का सेक्शन है। ये आप डायग्राम में ये देखो, ये ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज अ लीफ, एंड ये येलो कलर इसका ओव्यूल है, ठीक है। तो ये ओव्यूल ही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मैं इसको फिर अब डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। आज कल हम लोग साइकस पढ़ेंगे, ठीक है, साइकस के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट? आप लोग सुन भी रहे हो? कोई डाउट नहीं है ना? देखो, इसमें जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज बेसिकली यू नो